આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત મારા સાથી નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા, રાજ્યના મુખ્ય સચિવ શ્રી એમ કે દાસ, નાણાં વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રી ટી નટરાજન, ઉદ્યોગ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રીમતી મમતા વર્મા, સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગના સચિવ શ્રી પી ભારતી, આમંત્રિત સર્વે મહાનુભાવો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર। આપણે તો હર્ષભાઈએ કીધું એમ કે ભાઈ મુખ્યમંત્રી તો છે જ, પણ આપણા વડાપ્રધાનશ્રીનું કાર્યમંત્ર છે કે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌનો પ્રયાસ। એટલે બધી જ ક્રેડિટ અહીંયા બેઠેલા અને ગુજરાતના તમામને ક્રેડિટ જાય કે બધાએ એકબીજા ઉપર વિશ્વાસ અને સાથે ચાલ્યા એટલે આ ગુજરાત આટલું આગળ વધી રહ્યું છે। વિશ્વ નેતા અને વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જેવું એક વિઝનરી નેતૃત્વ મળે તો કેવા ક્રાંતિકારી પરિણામો આવી શકે તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ આજનો આ કાર્યક્રમ છે। કોઈપણ સમાજ અને અર્થતંત્રની અસરકારકતા માટે સાયન્સ અને ટેકનોલોજી મહત્વના છે। શ્રી મોદી સાહેબે 12 વર્ષના સુશાસન કાળમાં સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીને માત્ર લેબોરેટરી પૂરતા મર્યાદિત રાખ્યા નથી, રાષ્ટ્રના વિકાસના મુખ્ય આધાર બનાવ્યા છે। તેમણે સમય કરતાં 2 કદમ આગળનું વિચારીને ઇનોવેશન તથા ટેકનોલોજીનો સંગમ કર્યો અને વિકસિત ભારત માટેનું એક સંગીન ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કર્યું છે। ડિજિટલ વ્યવસ્થામાં સૌથી મહત્વની પાયાની બાબત ડેટા છે અને ડેટા જ વિકસિત ભારતના આર્થિક વિકાસનો નવો આધાર બની રહ્યો છે। આપણી આ વિકાસ યાત્રા ડિજિટલ ઇકોનોમી, એઆઈ, ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન સહિતના ઇમર્જિંગ સેક્ટરને નવી ગતિ આપે છે। વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારત વિશ્વમાં સૌથી મોટો ડેટા યુઝર અને ઉત્પાદક દેશ પૈકીનો એક બન્યો છે અને વર્લ્ડ ક્લાસ ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નિર્માણની અનેક તકો પણ ઊભી થઈ છે। શ્રી મોદી સાહેબે આ વર્ષના કેન્દ્રીય બજેટમાં દેશને ક્લાઉડ અને એઆઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ગ્લોબલ હબ બનાવવાનો માર્ગ મોકળો કર્યો છે। ડેટા સેન્ટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વૈશ્વિક કામગીરી માટે 20 વર્ષનો ટેક્સ હોલિડે આપેલો છે। ગુજરાત તો શ્રી મોદી સાહેબના હરેક વિચારને હકીકતમાં પલટાવવામાં અગ્રેસર રહેતું આવેલું રાજ્ય છે। તેમના નેતૃત્વમાં ગુજરાત દેશની ડિજિટલ વ્યવસ્થાના મહત્વના પ્લેયર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે। જેમ જેમ આપણે એઆઈ અને તેને આધારિત ટેકનોલોજી વિકસાવી રહ્યા છે તેમ તેમ સ્કેલેબલ ડેટા સ્ટોરેજ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની માંગ પણ વધી રહી છે। ભવિષ્યમાં ઊભી થનારી ડેટા સેન્ટર્સની માંગ અને રાજ્યમાં ડિજિટલ ઇકોનોમીને વધુ મજબૂત બનાવવાના સંકલ્પ સાથે આજે ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી જાહેર કરી છે। આ નીતિ નિર્માણ સાથે જોડાયેલા સૌનું હું ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। આ નીતિ દ્વારા રાજ્યમાં ક્લાઉડ સર્વિસીસ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન, ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ, સ્માર્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ સિસ્ટમ અને ડિજિટલ ગવર્નન્સ જેવી સેવાઓને વધુ સક્ષમ બનાવી શકીશું। આ નીતિ જાહેર થતાં જ ગુજરાત દેશમાં બેસ્ટ ડેસ્ટિનેશન ફોર ડેટા સેન્ટર બનશે તેવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે। શ્રી મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ગુજરાતમાં વીજળી, પાણી, ગુણવત્તાયુક્ત સડકો જેવું વિશ્વ કક્ષાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસ્યું છે। ગિફ્ટ સિટી દેશના ફિનટેક કેપિટલ તરીકે પ્રસ્થાપિત થયું છે। સાથે જ જીસીસી પોલિસી હેઠળ ગિફ્ટ સિટીમાં ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટરને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે। ગિફ્ટ સિટીમાં કાર્યરત થયેલું એઆઈ સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ નવા સોલ્યુશન્સ માટે તેમજ નિષ્ણાતો, વ્યવસાયો અને સ્ટાર્ટઅપને એક સાથે લાવવાનું મહત્વનું પ્લેટફોર્મ છે। સાણંદ ધોલેરા દેશના સેમિકન્ડક્ટર કેપિટલ બનવાની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે। આ તમામ પાસાઓના કારણે ગુજરાત ડેટા સેન્ટર માટે પણ બેસ્ટ ચોઇસ બનવાનું છે, તેમાં કોઈ શંકા નથી। ઉદ્યોગની પર્યાવરણ પર ઝીરો ઇફેક્ટ હોય
અને આપણા ઉત્પાદનમાં ઝીરો ડિફેક્ટ હોય તેવો આપણો ધ્યેય છે. આજે જાહેર થયેલી ડેટા સેન્ટર પોલિસી દ્વારા ટેકનોલોજીમાં શ્રેષ્ઠતા અને પર્યાવરણ પ્રત્યેની જવાબદારીને સમાન મહત્વતા આપતા ઇન્વેસ્ટમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે. રાજ્ય સરકાર લોંગ ટર્મ અને સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ માટે કટિબદ્ધ છે તે આ બાબત પોલિસીમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. ગુજરાત ડેટા સેન્ટર પોલિસી માત્ર ગુજરાત જ નહીં, દેશના ભવિષ્યના વિકાસને ગતિ આપશે અને ન્યૂ જનરેશન ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટને વેગ આપશે. તેમ તમે પણ ગુજરાતની ગ્રોથ સ્ટોરીનો હિસ્સો બનીને વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારતમાં યોગદાન આપતા રહેશો. ભારતને વિશ્વના સોફ્ટ પાવર લીડર અને નોલેજ બેઝડ ઇકોનોમીમાં અગ્રેસર બનાવવામાં પણ ગુજરાત લીડ લઈ રહ્યું છે. આવનાર દિવસોમાં આ નવી ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશન રાજ્યમાં અર્થતંત્રનું બેકબોન સાબિત થશે. ગુજરાત દેશનું ટેક એન્જિન બને એમાં આપ સૌનું યોગદાન મળતું રહેશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. वंदे मातरम। कि ये लॉन्चिंग कार्यक्रम में हम सब के बीच उपस्थित राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल, मेरे साथी मंत्री आदरणीय श्री अर्जुन भाई मोडवड़िया, राज्य के चीफ सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार दास जी, एसीएस फाइनेंस डॉक्टर नटराजन जी, श्रीमती ममता वर्मा जी, श्रीमती पी भारती एवं यहाँ उपस्थित राज्य और देश भर से पधारे हुए सभी निवेशकों का मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. खास तौर पे देश एवं दुनिया के हाइपर स्केल एवं एआई की दुनिया से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं आज ये नई अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं. हमने देश का वो दौर भी देखा है जब दुनिया सेमीकंडक्टर मिशन में आगे बढ़ रही थी और यही देश में 1976 की एक कैबिनेट में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक निर्णय लिया जाता है सेमीकंडक्टर के मिशन को लेकर. 1976 में लिया गया निर्णय 1990 तक आते आते सेमीकंडक्टर मिशन फेल हो जाता है. 2006 से 2009 के बीच में फिर एक बार हैदराबाद में सेमीकंडक्टर पार्क का एक बहुत ही बड़ा डिक्लेरेशन होता है. 2009 में फिर से सेमीकंडक्टर मिशन के वो सपने बह जाते हैं. 2009 में वो ही सेमीकंडक्टर पार्क की जगह रियल एस्टेट में कन्वर्ट हो जाती है. ऐसा दौर भी ये देश ने देखा है. और एक ऐसा भी दौर देखा कि 2021 में मोदी जी के मार्गदर्शन में देश ने सेमीकंडक्टर मिशन को आगे बढ़ाते हुए 2025 से ये देश में अनेक सेमीकंडक्टर मिशन, अनेक सेमीकंडक्टर फैब की बात हो या फिर ऑसेट के लोकार्पण की बात हो, केवल 4 महीने के भीतर 3 से ज्यादा सेमीकंडक्टर ऑसेट की लोकार्पण ये गुजरात की धरती पे करने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार की टीम ने ये दिखा लिया कि गुजरात और देश जब कोई निर्णय या जो कोई दिशा में अगर सोच करती है तो उसको जमीन पे उतारने की पूरी तरह से कैपेसिटी भी धारण करती है. मैं टीम गुजरात के सभी साथियों को ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की सफलता के लिए अभिनंदन देता हूं. आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात ने विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी का लोकार्पण किया है. ये अपने आप में देश में अनेक राज्यों में कई समय से डेटा सेंटर की बातें जरूर होती हैं, लेकिन गुजरात ये पहला राज्य है
जिसने ऑफिशियल डेटा सेंटर पॉलिसी लॉन्च की है। और मैं आप सबको अभिनंदन देता हूं कि डेटा सेंटर की पॉलिसी हमने आज लॉन्च की है। और डेटा सेंटर की पॉलिसी 7.5 गीगा की कैपेसिटी की जब पॉलिसी ये लॉन्च हो रही है, उसके सामने अभी मेरे साथी मंत्री ने आपको बताया, वो आंकड़े उन्होंने केवल और केवल धोलेरा के लिए बताए हैं। पूरे गुजरात में कुल मिला के जो पॉलिसी आज लॉन्च हो रही है, उससे करीबन डबल कैपेसिटी की डिमांड आज राज्य सरकार के पास देश एवं दुनिया की लीडिंग कंपनीज द्वारा अपने डेटा सेंटर गुजरात में अलग अलग स्थान पर स्थापित करने के लिए रिक्वेस्ट लेटर उन्होंने भेज लिए हैं। ये अपने आप में गुजरात के लिए बहुत ही बड़ी बात है। मैं मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन देता हूं कि उनके नेतृत्व वाली ये सरकार पे लोगों को पूरा भरोसा है। और ये भरोसा कैसा है? ये भरोसा ऐसा है कि गुजरात पॉलिसी ला रही है, खाली इतनी ही माहिती मिलते लोग चारों ओर से अपनी पहली चॉइस गुजरात को बनाते हैं। यही अपने आप में बयां करता है कि गुजरात एक ब्रांड है, गुजरात एक गारंटी है, गुजरात जो सोचता है वो करता है। ये केवल देश के निवेशक नहीं, लेकिन दुनिया के निवेशक ये दिशा में 100% विश्वास रखते हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है। मैं टीम गुजरात के मेरे सभी साथियों को अभिनंदन देता हूं। गुजरात विकसित गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी, अभी कुछ समय पहले ही चीफ सेक्रेटरी जी ने यहां पे बताया कि डेटा सेंटर गुजरात क्यों? देश एवं दुनिया भर में और भी कई स्थान हैं, लेकिन लोगों की पहली चॉइस गुजरात क्यों बन रही है? एक, स्टेबल गवर्नमेंट, पॉलिसी ड्रिवन स्टेट। और डेटा सेंटर की अगर मैं बात करूं तो डेटा सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और पानी की महत्तम जरूरियात होती है। हमने कई सालों से गुजरात के कोई भी कोने में जहां इंडस्ट्रीज स्थापित की गई है, वहां पे सीमलेस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो गारंटी दी थी, उसको 100% पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं एनर्जी डिपार्टमेंट एवं सभी प्राइवेट प्लेयर्स का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उसी के साथ साथ डेटा सेंटर में जो महत्तम पानी की जरूरियात होती है, उसके लिए भी गुजरात 100% जो अपनी गारंटी है वो देने में आज तक सफलता प्राप्त की और आने वाले समय में भी जरूर से सफलता प्राप्त करेगी। लेकिन उसकी के साथ साथ हमने हमारी पॉलिसी में ये एनर्जी या पानी, ये दोनों में सस्टेनेबिलिटी का बहुत ही बड़ा ख्याल रखा है। केवल पानी दे लेंगे, कोई और इंडस्ट्रीज का, किसानों का पानी हम नहीं देने वाले हैं भाई। एनर्जी तो कंपलसरी 51% एनर्जी डेटा सेंटर में जो यूज हो रही है, उसको ग्रीन एनर्जी का उपयोग ही करना पड़ेगा। हमने खास ये पॉलिसी में भार दिया है कि डिसैलिनेशन कैसे किया जाए और महत्तम पानी समंदर में से लेके उसको मीठा पानी कैसे कन्वर्ट किया जाए, उस पे भी भार दिया गया ये पॉलिसी में। और मैं आप सबको कहते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है कि दुनिया का
सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला डेटा सेंटर कोई एक शहर में होगा तो वो धोलेरा होगा, और धोलेरा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर सिटी के तौर पे आगे बढ़ रहा है। ये सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो डेटा सेंटर प्रस्थापित करने के लिए चाहिए, वो गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में तैयारियां कर ली गई है। मैं आप सबको कहते हुए मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है कि आने वाले कुछ ही दिन में हम स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की एक मीटिंग बुलाएंगे, और वो ही बैठक में आप सभी लोगों को जो लैंड अवेलेबिलिटी है वो लैंड पॉकेट्स भी दिखाए जाएंगे। उसी के साथ साथ जो कंपनी एक स्टेप आगे बढ़ के उनका इन्वेस्टमेंट धोलेरा में लाना चाहती है, वो सभी को एक सीनियर ऑफिसर्स, एक नोडल ऑफिसर के तौर पे नियुक्त किए जाएंगे, जो आपकी एप्लीकेशंस को डे टू डे आपको किसी भी प्रकार के धक्के सरकारी विभाग में ना खाने पड़े, ऐसी मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था करने का निर्देश दिया है, और वही व्यवस्थाओं को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार अभिनंदन भी देता हूं, और आपका दुनिया के एक ऐसी इंटरनेशनल सिटी जहां पे मैन्युफैक्चरिंग से लेके हर प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने जो इकोसिस्टम के लिए व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्थाओं को बहुत तेजी से जहां पूर्ण किया है, ऐसे धोलेरा में आने वाले कुछ ही समय में एयरपोर्ट भी चालू हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन की एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी अहमदाबाद से चलने वाली है। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वहां पे सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। डेटा सेंटर्स की ये दुनिया में धोलेरा दुनिया में अव्वल स्थान पे जब आगे बढ़ रहा है, तो डेटा सेंटर केवल वहां पे प्रस्थापित करने के लिए सरकार आगे नहीं बढ़ रही है। डेटा सेंटर के साथ साथ आने वाले समय में जीसीसी का हेडक्वार्टर भी धोलेरा कैसे बन पाए, वही दिशा में सरकार कामगिरी कर रही है, और मैं आप सभी लोगों का धोलेरा में स्वागत करता हूं। ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये पॉलिसी लिमिटेड कैपेसिटी के लिए है, डिमांड डबल है, और भी जो कोई लोग ये पॉलिसी का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें मैं गुजरात में स्वागत करता हूं। ये ट्रेन गुजरात की जो चूकेगा वो जिंदगी भर पछताएगा, ये मैं जरूर मानता हूं, क्योंकि ये पॉलिसी की बैठक ये फिनांस एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग पिछले कई समय से कर रहा है। इवन एनर्जी डिपार्टमेंट, ये सभी लोगों ने मिलके जो मेहनत करके ये पॉलिसी बनाई है, मैंने देखा है। यहां बैठे हुए लोगों को शायद अंदाजा नहीं होगा, कभी कभी दफ्तर में आने में इन लोग को 9:30 से 9:45 बज जाते हैं, तो आपने अखबारों में हेडलाइन जरूर पढ़ी होगी, लेकिन वो अखबारों में हेडलाइन ये नहीं आती है कि 3 बजे तक रात को कभी बैठ के यही टीम मेहनत करती है आप सबके लिए। तो ये टीम गुजरात को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, और इसी प्रकार से आप सबके साथ मिलकर गुजरात के विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा कमिटेड है। आप सबका बहुत बहुत